اچھا 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سب سے پہلے ہم آپ مل کر عقیدت محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر درود و سلام کی دعائیں پیش کرے پر بابا زبان اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھنڈ کا موسم ہے, وقت زیادہ ہو چکا ہے اور اس وقت میں سمجھتا بھی نہیں ہوں کہ میں تقریر زیادہ وہ کروں, بلکہ جس ہستی جس ذات مقدس شخصیت کی ناخوانی تقریر سننے کا مقصد تھا ہم لوگوں نے سن لیا, اور ظاہر سی بات ہے حق ہے ان کا, اس لیے کہ ہماری اور دیگر اماموں کی تقریر ناخوانی آپ سنتے رہتے ہیں, لیکن حالانکہ حضرت شہزادہ حضور حلیم ملت حضرت شاہ الحاج نورانی میاں صاحب قبلہ آپ کے بلکہ آپ تمام لوگوں کے اوپری کے سب سے جو پرانی مسجد ہے جامع مسجد ان کے امام رہ چکے ہیں, تو گویا کہ آپ کے سابق امام ہیں, یعنی سب سے پرانے پہلے گزرے ہوئے تقریباً 7-8 سال امام رہ چکے ہیں, لیکن ابھی فی الوقت وہ دور رہتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے دور سے آئے ہیں تو ان کا حق تو ہے ہی ان کا زیادہ سے زیادہ وقت دے کر کے سنا جائے, اور یہ میری خصوصیت ہے, یہ میرے اندر یہ بات موجود ہے کہ میں جہاں رہتا ہوں اکثر حضرت کی نعت خوانی اور تقریر سننے کے لیے ہمارا دل بےقرار ہوتا ہے. حالانکہ ہر آدمی کی اپنی اپنی جگہ پر آواز اچھی ہوتی ہے, نعت خوانی تقریر ہر انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں ہم نے بہترین صورت پر بنایا, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. کوئی انسان خراب نہیں, لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کسی کے دل میں آٹومیٹک کوئی بھا جاتا ہے. تو وہی بات ہے کہ حضرت کی نعت خوانی یا تقریر میں دیکھتا ہوں, یا میں جہاں تھا میجر گنج کے قریب تھا, تقریباً 4 سال وہاں تھا, وہاں بھی حضرت کو 1-2 مرتبہ ہم نے بلایا, اس کے بعد لوگوں نے خود فرمائش کر کے بلانا شروع کیا. ابھی بھی وہاں جاتے ہیں جہاں سے ہم چلے آئے. تو وجہ یہ ہے کہ جب یہ اسٹیج پر ہوتے ہیں تو ہر اسٹیج پر آنے والے بہترین نعت خوانی تقریر کرتے ہیں, لیکن ان کی آواز اللہ نے ایسی دی ہے, اور آواز بہت بڑی نعمت ہے کہ دل کھینچتا ہے کہ نہیں. صرف خطبہ پڑھتے ہیں اور اس میں بھی ان کی موجودگی میں اگر ہم کچھ بول لیتے ہیں یا ان کی زیارت ہو جاتی ہے تو ہم یہی کافی سمجھتے ہیں, اس لیے کہ عام طالب علم کا یہ مرتبہ ہے مذہب اسلام کے اندر کہ اس کے لیے فرشتے اپنے بازو بچھاتے ہیں, جو علم دین سیکھتے ہیں, جو قرآن اور حدیث کا علم سیکھتے ہیں, اور یہ وہ عالم دین ہیں جو سکھاتے بھی ہیں سیکھتے بھی ہیں, اور وہ باعمل عالم ہیں جن کی وجہ سے میرا خود تجربہ ہے کہ میرے پاس
कई हाजतमंद आए और मैं हजरत के पास भेज दिया अल्लाह के फजल से, और इनकी जबान की तासीर से उन हाजतमंदों की हाजत पूरी हो गई। तो फिर पता चला कि इन शख्सियत की हाजिरी मुलाकात यकीनन आम आलिम दीन को कोई देख ले, सलाम करे, मुसाफा करे, उसे अल्लाह बेशुमार फजाइल और फवाइद अता फरमाता है। तो फिर ऐसे आलिम जिसकी जबान में तासीर है, ये किसी ने कहा है कि हमारे और आपके दरमियान, और बल्कि अल्लाह के रसूल का फरमान है कि 40 मोमिन जब जमा होता है तो 40 मोमिन में एक अल्लाह का नेक बंदा वली होता है, लेकिन उसे हम पहचान नहीं पाते हैं। वही बात है, शायद हम पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके अंदर ये खुसूसियत दी है कि दिल खींचता है। आइए एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये महफिल जब आदमी को इंतकाल हो जाए, ये कोई रस्म रिवाज नहीं कि अगर हम महफिल नहीं करेंगे तो लोग हमें क्या कहेंगे, या महफिल करेंगे तो हमारा नाम चलेगा। ये नहीं, बल्कि इस महफिल की बरकत ये है और इसकी खुसूसियत सुने गौर से, ध्यान से। इस वक्त मैं कम वक्त में अहम बात करने की कोशिश कर रहा हूं, फिर इसके बाद हो सके तो मौलाना इम्तियाज साहब किबला भी आएंगे, उसके बाद इख्तिताम की जाएगी। तो कुछ ही देर आप लोग बगौर समाप्त करें। ये रस्म नहीं या लोगों के हंसने की वजह से नहीं, बल्कि मजहब इस्लाम के अंदर जो मजहब सबसे अच्छा मजहब है, जो अल्लाह के नजदीक सिर्फ मजहब अगर कोई है वो मजहब इस्लाम है। इस मजहब इस्लाम के अंदर ये बात मौजूद है कि ये कोई रस्म नहीं, बल्कि ये शरीयत मुस्तफा का कानून है कि जब आदमी इंतकाल हो जाए तो उसके लिए इसाले सवाब किया जाए। और इस महफिल इसाले सवाब नहीं, आप अंदाजा लगाए कि इसाले सवाब नहीं, कैसे नहीं सवाब, बल्कि ये मुअज़्ज़ज़ इसाले सवाब है कि नबी की महफिल सजाने की वजह से उस जगह को अल्लाह ताला साल भर बलाओं से महफूज कर लेता है। जिस जगह पर महफिल सजाई जाती है, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं कि जिस जगह नबी की महफिल सजाई जाती है उस जगह को भी और उस महफिल में रहने वाले, सजाने वाले को अल्लाह साल भर बलाओं से महफूज कर लेता है। पता चला जिस महफिल से साल भर जगह को, लोगों को बला से महफूज कर लिया जाएगा, तो जिसके नाम से महफिल किया जाए तो क्यों नहीं किया जाए, बल्कि जिस तालिब इल्म के कदम की बरकत से अल्लाह कब्रिस्तान में हजारों मुर्दों पर अजाब होते रहे, उस वक्त भी अल्लाह ताला उस तालिब इल्म के कदमों की बरकत से उस अजाब को उठा लेता है। बल्कि एक बिस्मिल्लाह पढ़ने की वजह से अगर औलाद बिस्मिल्लाह पढ़ दे तो बाप की मगफिरत हो जाती है। जो औलाद सिर्फ बिस्मिल्लाह नहीं बल्कि महफिल मिलादुन नबी सजाकर पूरी सूरत पढ़वाए, और बल्कि 40 दिन तक के कोई हाफिज कुरान, कारी कुरान जो तजवीद के साथ सही कुरान पढ़ता हो, फिर उससे पूरे एक खत्म से ज्यादा भी कुरान पढ़वाए, फिर उसके माँ बाप की मगफिरत ना होगी, यकीनन होगी। और खुसूसियत की बात, खास तवज्जो की बात यह है कि आज हम कुरान पढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं सही तौर पर, लेकिन सब लोग समझते हैं कि हम सब कुरान पढ़ते हैं। कुरान सब पढ़ते हैं। मैं पूछूंगा कि आप लोग कितने आदमी कुरान पढ़ते हैं? सब आदमी। लेकिन यहां पर अगर 30 आदमी है, 30 आदमी में से मैं समझता हूं तजवीद के साथ 2 आदमी बहुत मुश्किल से पढ़ पाए। तजवीद के साथ जिस तरह अलहम में बड़ी हा है, आप कोई कहेगा अलहम, कोई सवाब नहीं होगा पढ़ने से। इसी तरह से है कुल हुवल्लाहु अहद या कुल, कोई कहेगा कुल, कोई सवाब नहीं होगा। इसी तरह अल्लाहु समद, साथ से है, कोई कहेगा अल्लाहु समद, कोई सवाब नहीं। लेकिन सीखते जो सबसे अच्छी किताब, सबसे आजमत किताब, जिस किताब के सीखने के बुनियाद पर अगर माँ बाप औलाद को कुरान की तालीम सिखाता है, तो अब माँ बाप कुरान की तालीम
सिखाता है, लेकिन कुरान उस बच्चे को माँ बाप का अदब करना सिखा देता है। माँ बाप इंतकाल हो जाए तो वो बच्चा कुरान की तालीम के बुनियाद पर उसे जन्नत में जाने का जरिया और सबब पैदा करता हुआ नजर आता है। ये कब होता है? कुरान सिर्फ हमें दुनिया में फायदा नहीं पहुंचाता है, बल्कि मरने के बाद भी फायदा पहुंचाता है। आप नहीं देखते, ये वाहिद किताब है जो जिसको देखने पर भी सवाब, छूने पर भी सवाब, पढ़ने पर भी सवाब, सुनने पर भी सवाब। अंदाजा लगाए कि जिस कुरान की फजीलत ये है कि आपने हमेशा ये सुना है, हर चीज दुनिया की फना हो सकती है, जमीन, आसमान, चांद, सूरज, लेकिन कुरान हर्फ उठा लिया जाएगा, खत्म नहीं होगा, बल्कि कुरान उठा लिया जाएगा। बाकी रहने वाली जात कुरान है। पता चला कि हम कुरान की तिलावत करते हैं, कितने खुशनसीब है कि हमारी तिलावत की हुई कुरान बाकी है। और बल्कि जिस अल्लाह की हम जिक्र करते हैं, बड़ाई करते हैं, इबादत करते हैं, वो अल्लाह बाकी रहने वाली जात है। आपने सुना है तो पता चला कि ये चंद दिन की जिंदगी के लिए हम जो बाकी रहने वाली जात है, हम उनको ना भूले। और जो बाकी रहने वाली जात है वो सिर्फ दुनिया में मदद नहीं करता, दुनिया ही में रहनुमाई नहीं करता, बल्कि हमेशा हमें इसके लिए। और ये कुरान मजीद जो हमने आयत पढ़ी है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है कि हमने चंद दिन की जिंदगी और मौत देकर लोगों को आजमाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हज़रत, महफिल मिलादुन नबी। आइए अपना दुरूद पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत। तो इस महफिल कोई रस्म नहीं, बल्कि इसकी बरकत आपको समझ में आ गई होगी कि जिस महफिल मनाने के बुनियाद पर अल्लाह महफिल मनाने वाले को जन्नत में हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ जब भेज सकता है, अल्लाह वो ताकत और कुदरत रखता है। और हमारा ईमान है इस रिवायत पर, तो फिर जो आदमी महफिल मनाए और जिसके नाम से मनाए, जिसके लिए मनाए, फिर उसको क्यों ना भेज दे। तो ये महफिल की बरकत है और ये जरूरत है, इसलिए कि ये भी रिवायत में मिलता है, मजहब इस्लाम के कुतुब में यह बात मौजूद है कि जब आदमी इंतकाल हो जाता है तो वो इस तरह इंतजार करता है जिस तरह मुसाफिर कोई गाड़ी का इंतजार करता है, या जिस तरह कोई मेहमान का इंतजार करता है। इसी तरह हमारे घर से मरहूम मर जाते हैं, माँ बाप हो, दादा दादी हो, औलाद हो, जो भी हो, वो इंतजार करते हैं कि हमारे घर वाले नेक काम करेंगे, हमारे लिए इसाले सवाब करेंगे। नेक काम क्या है, इसाले सवाब क्या है? नबी की महफिल सजाना, कुरान की तिलावत करना, नवाफिल पढ़ के सवाब पहुंचाना, कुरान की तिलावत, दुरूद पाक, नबी का नाम लेकर के उनका सवाब पहुंचाना। तो पता चला कि ये महफिल में ये तमाम तर बात तो की जाती है, नबी का नाम भी लिया जाता है, और नबी का नाम लेना ही काफी है। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। नबी का नाम लेने से गम भुला दिया जाता है। नबी के गुलाम गौसे पाक है, और गौसे पाक फरमाते हैं जो मेरा नाम लेता है उसकी मुसीबत बाकी नहीं रहती है। जब गौसे पाक का नाम लेने से मुसीबत टाल दी जाती है, तो पता चला नबी का नाम लेने से मुसीबत क्यों नहीं टलती, यकीनन टल जाती है। और जिसके लिए लिया जाए फिर उसकी मुसीबत क्यों नहीं टलेगी। यकीनन ये निजात का जरिया है। आइए एक मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये रस्म नहीं लोगों की वजह से नहीं, बल्कि हम मजहब इस्लाम के कानून के मुताबिक करते हैं कि हमारे मरहूम घर से जब हमारे आदमी इंतकाल हो जाते हैं तो वो ताक में लगे होते हैं, इंतजार करते हैं कि हमारे नाम से इशारे सवाब करे। और बल्कि ये भी रिवायत में है कि मुसलमान मोमिन की रूहें शब जुमा या शब ईद उल फित्र, शब ईद उल अजहा या मुकद्दस जैसे शब बारात हो, ये सब मौका पर खास मौका पर रूहें आती है और देखती है कि हमारे नाम से इशारे सवाब किया जा रहा है नहीं। इशारे सवाब जब किया जाता है वो खुश होकर जाती है, रूहें खुश होकर जाती है। और ये भी बात मौजूद है किताबों के अंदर कि जिस तरह आदमी जिंदा में जो चीज माँ बाप पसंद करते थे, अगर वो इंतकाल हो गए तो वही काम उसके साथ किया जाए
تو وہ خوش ہوں گے. پتا چلا اگر ماں باپ کی آرزو تھی کہ مدرسہ بنائے, مسجد بنائے, تو ہم اس کام کو انجام دے تو اور زیادہ فائدہ ہے اور اس کی روح خوش ہوگی. اور خوش نصیبی یہ بات کی ہے کہ کل سے آپ کے پچیاری محلہ کی مسجد, وہ شاندار مسجد لمبی چوڑی بنی ہوئی ہے, لیکن پلستر کے بغیر تھوڑی سی ہم لوگوں کو محنت کرنے کی ضرورت ہے. اور کل سے انشاءاللہ, آج مستری وغیرہ آئے تھے, دیکھ کر کے گئے, اور کل سے انشاءاللہ کام شروع ہے. تو میں عرض کروں گا خصوصی طور پر, اور یہ بات بھی حدیث میں ہے کہ حضرت صاحب کی امی کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے رسول کے بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کیا یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا, میں زندگی میں اپنی ماں کی تو خدمت کرتا تھا, دوائی ہو, کھانا پانی ہو, کپڑا ہو, سب چیز کا انتظام کرتے تھے, اب ان کا انتقال ہو گیا, اب ہم اسے کیسے خوش کریں, اب ہم اس کی خدمت کیسے کریں. اللہ کے رسول نے فرمایا اس وقت دھیان دیجیے گا, اس وقت مدینے کے لوگوں کو پانی کی ضرورت ہے. اگر تم کنواں کھودوا دیتے ہو تو اس کا ثواب تمہارے ماں کو ملتا رہے گا, جب تک کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے تمہارے ماں کو ثواب ملتا رہے گا. اور حضرت صاحب نے ایسا ہی کیا اور اس کا ثواب ملتا رہا. پتا چلا جس مسجد کو آج پلستر کی ضرورت ہے, جس محلے والے کو خوبصورت مسجد کی ضرورت ہے, اور مسجد کو تو خوبصورت بنانا ہی چاہیے, بلکہ اس دور میں تو اور خوبصورت بنانا چاہیے تاکہ آدمی کا دل بھی نہ کرے نماز پڑھنے کا. خوبصورتی اتنی زیادہ ہو مسجد میں کہ جا کر کے وہ نماز پڑھنے پر مجبور ہو جائے. اور ظاہر سی بات ہے کبھی کبھی عادت لگانا پڑتا ہے, جیسے آپ نے یہ سنا ہے کہ بابا فرید الدین شکرگنج, ان کی امی شکر کا کبھی کبھی لالچ دے کر کے مطلب کہ نماز پڑھواتی, لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ اس کا خود انتظام کر دیا اور وہ پکے نمازی بلکہ ولی کامل بن گئے. تو پتہ چلا شروع میں ہمیں ایسی آسائش والی مسجد بنانی چاہیے کہ لوگ اس کی وجہ سے آئے, لیکن بعد میں اسے اتنی چاشنی ملنے لگے کہ وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جائے. اور جتنی عبادت کریں گے, جتنے محبوب بندہ بنیں گے, اس مسجد سے ان کو بھی ثواب ملتا رہے گا. تو میں کوشش کروں گا اور عرض کروں گا وارثین سے, یعنی ان تمام بھائیوں لوگوں سے, بہنوں لوگوں سے, جن لوگوں نے عرفان بابو کے تمام بھائی یعنی سلام چاچا کے تمام لڑکوں نے, لڑکی نے یہ مل کر اتنے سارے خرچات محفل میں کیے ہیں, تو مسجد کا کام کل سے شروع ہوگا. تو اس میں بھی بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے. اور یہ سب سے یہ دنیا دار کا ہر چیز ختم ہو جائے گا, آدمی بھی قیامت کے دن تو ختم ہو جائے گا, لیکن مسجد ختم نہیں بلکہ اٹھا لیا جائے گا. تو آپ اس جگہ پیسہ خرچ کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے. آئیے ایک مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. تو پتہ چلا کہ یہ کوئی رسم نہیں بلکہ مرحومین انتظار کرتے ہیں. تو ہمیں صرف محفل نہیں بلکہ ہمیں جب موقع ملے تو ہم اپنے, بلکہ نماز جو پڑھے گا وہ تو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے گا ہی. تو اولاد نیک ہونا اس لیے ضروری ہے, لیکن جو لوگ نیک نہیں ہے تو کم سے کم نیک آدمی سے بھی تو دعا کرا سکتے ہیں, ان کی خدمت تو کر سکتے ہیں. مدرسہ میں پڑھنے والے طالب علم ہو, پڑھانے والے عالم دین ہو, اس پر خرچ کرے اور اس سے دعا کروائے تو یقیناً اللہ ان کے ذریعے بھی مغفرت فرما دے گا. لیکن میں کوشش کروں گا کہ ہر آدمی خود بھی نیک بنیے, اپنے بچوں کو نیک بنائیے. یہ چند دن کی زندگی ہے. ہم نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے, اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, ہم نے چند دن کی یہ زندگی دی ہے اور موت بھی دیا ہے تاکہ لوگ کو آزمائیں کہ چند دن کی زندگی میں 100 سال 150 سال کی زندگی میں کتنا اچھا عمل کرتا ہے. اس لیے کہ اچھا عمل کرنے والوں کے لیے ہم نے ان الابرار لفی نعیم یعنی جنت بنایا ہے, اور برے عمل کرنے والے, عیاشی کرنے والے, اللہ و رسول کی نافرمانی کرنے والے کے لیے وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ہم نے جہنم بنایا ہے. پتہ چلا اور دنیا ختم ہونے والی ہے لیکن جنت ختم نہیں ہونے والی ہے, وہ قائمی ہے, دائمی ہے. دنیا کی زندگی 100 سال 150 سال میں تو ختم ہو جانی ہے, اور اگر کوئی کہے کہ نہیں ہم 400 سال زندہ رہیں گے تو قیامت تو آنی ہے, قیامت تو آنی ہے, اس میں تو ہر چیز ختم ہو جائے گی. زمین آسمان چاند سورج انسان ہر
हर चीज खत्म हो जाएगी, लेकिन जो फैसला हो करके नेकोकार को जन्नत में भेजा जाएगा, वो कभी जमाना, वो दिन, वो जगह खत्म नहीं होने वाला। और वहां ऐशो आराम भी आराम, दुनिया में लाख आप कमाई कमा लेते हैं, अल्लाह की नाफरमानी करके इक्तिदार कमा लेते हैं और शहंशाह बादशाह मालदार बन जाते हैं, लेकिन आपको हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती और मौत का सवाल आता है, मौत का खटका आता है, डर आता है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं, नेकी कर लेते हैं और अल्लाह की रजा के लिए गुनाह से बच जाते हैं, तो हमें जन्नत मिलता है। और जन्नत में किसी चीज का गम नहीं, खटका नहीं, मौत का गम नहीं, बीमार होने का गम नहीं, और ऐशो आराम ही। जो ख्वाहिश करेंगे, जो चीज खाने की ख्वाहिश, हर चीज ख्वाहिश पूरी की जाएगी। लेकिन अगर हम इसके बरअक्स करेंगे, यानी हम नेकी नहीं करेंगे और हम बुराई से नहीं बचेंगे, तो फिर जहन्नम है, उसमें भी हमारी जिंदगी खत्म नहीं हो सकती, मौत भी नहीं आएगी और वो अजाब 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 हमें भोगना पड़ेगा। हमारे जिस्म में वो ताकत नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल ने भी फरमाया कि जहन्नम का वो अजाब है कि अगर जहन्नम का भारी अजाब किसी को सुना दिया जाए तो बल्कि कोई सुना नहीं सकता, सुन नहीं सकता। अगर जहन्नम का अजाब जानवरों को पता चल जाए तो वो ऐसे घूमने लगेगा जैसे पानी में नमक घूमने लगता है। तो और ये कतल है जहन्नम, जन्नत का जिक्र कुरान में है और हदीस में है। इसकी फजीलत, जन्नत की फजीलत हो या जहन्नम के अजाबात हो, ये सब बात मौजूद है। हमारा ईमान है तो हम सिर्फ ईमान न रखे, बल्कि हम इस अमल पर उतरे, मैदान में उतरे। जब तक कि हम अमल के मैदान में नहीं उतरेंगे, हम कामयाब नहीं होंगे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हमने चंद दिन की जिंदगी दी है ताकि तुम्हें आजमाए कि कितना अच्छा अमल करता है। दुनिया में इम्तिहान के लिए साल 2 साल टाइम मिलता है, फेल हो जाता है, फिर दूसरा मौका मिल जाता है। लेकिन मजहब इस्लाम के अंदर बताया जाता है, ऐ लोगों, तुम्हें फर्स्ट बार, पहली बार जिंदगी दी गई है, दोबारा जिंदगी न मिलेगी। अगर तुम मर गया 100 साल 150 साल के बाद, 1 मिनट के लिए गुनाह नहीं, सिर्फ सजदा करने के लिए तुम अगर मौका मांगोगे, न मिलेगा। इसलिए ये लास्ट है और फर्स्ट मर्तबा इतने बड़े इम्तिहान गाह में तुम बैठाए गए हो, इसलिए तुम कामयाब हो। कामयाब होने की कोशिश करो, लेकिन कैसे? सिर्फ सुनने से, सिर्फ अय्याशी करने से नहीं, इल्म सीखिए। इसलिए कि जब इल्म नहीं होगा, जब इल्म नहीं तो अमल क्या होगा? जिस बयाबान शजर ही नहीं तो फल क्या होगा? जब हमारे पास तजवीद का इल्म नहीं होगा, कुरान अच्छा पढ़ने का इल्म नहीं होगा, हमें सवाब कैसे मिलेगा? हमारी नमाज कैसे होगी? हम अल्लाह को कैसे पहचान सकते हैं? पिघलना इल्म की खातिर मिसाल शम्मा ज़ेबा है, बगैर इल्म के तो हम अपने आप को नहीं पहचान सकते। बगैर इल्म के हम अपने माँ बाप को क्या पहचानेंगे? हमारे माँ बाप इंतकाल हो जाए, हम उसके लिए क्या करेंगे? हमारे पास इल्म नहीं है, जहालत की वजह से हम क्या जानेंगे? बल्कि न इल्म की बुनियाद पर, जहालत के बुनियाद पर तो आदमी अल्लाह को नहीं पहचानता, अल्लाह को भूल जाता है। इसलिए सबसे बड़ी ताकत, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह की रजा हासिल हो जाए, सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ा इख्तिदार, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह की रजा हासिल हो जाए, तो इल्म सीखना होगा और उस पर अमल करना होगा। आइए एक मतलब मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक्त ज्यादा हो गया है, अल्लाह ताला इस महफिल के सदके आली जनाब इस्लाम चाचा के औलिया की मग़फ़िरत फरमाए, बाबू इरफान की अम्मी के रूह को अल्लाह तबारक व तआला दर्जा में बुलंदी अता फरमाए, उनकी कब्र को इस महफिल के सदके जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए। ऐ अल्लाह, इस पाक महफिल को हम तमाम लोगों के लिए मग़फ़िरत का जरिया बना, नेक मकासद में कामयाबी कमरानी का जरिया बना। आइए हम लोग इस्तिग़फ़ार कर ले। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व बरी कलिमत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वो सी लीजिएगा।
लेके गया मोबाइल लाइए इधर